मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंडेंसर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड नया आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स। देखिए सिंबल ऑफ द कंडेंसर, यहाँ पर ये सिंबल ऑफ द कंडेंसर है। ओके, हैविंग कैपेसिटी C। So this vertical line represent first plate of the parallel plate capacitor and second vertical line represent second plate of the capacitor. Okay, now the length of both lines are same, so they are parallel to each other. Okay, so this is the symbol of condenser or capacitor. Now because in spherical and cylindrical the surfaces or plates are parallel to each other, so ये यहाँ पर symbol है इसका। Now when such condensers are connected in series and parallel, तो उनके equivalent capacitance पर difference होता है, मतलब effect होता है। So यहाँ पर दो points हमें discuss करने हैं। Number one, condensers in series and then condensers in parallel। Okay, और उससे related कुछ points यहाँ पर फिर discuss करने हैं। जैसे number one, condensers in series। देखिए condensers having capacities C1, C2, C3, there are three such condensers are connected one after another। okay, one after another मतलब देखिए first plate of the first condenser connected to positive terminal of the battery। okay, second plate of first condenser connected to first plate of second conductor, second plate of second condenser is connected to first plate of third condenser and so on। so this is known as condensers connected one after another and this combination is known as condensers in series combination। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, ले across this series combination total potential applied is V। so V is total potential applied। okay, now as they are connected in series, तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V1, सेकंड कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल V2 एंड थर्ड कंडेंसर अक्रॉस पोटेंशियल V3। नो सपोज यहां से प्लस Q चार्ज विथड्रॉ होता है। ओके, एंड दैट इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट। तो अब फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज, राइट। सो माइनस Q चार्ज इनर साइड ऑफ सेकंड प्लेट पर इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस एंड देयरफॉर प्लस Q चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर साइड, राइट। नो दिस प्लस Q चार्ज इज फ्री बिकॉज माइनस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज गेट बाउंड। तो दिस प्लस Q चार्ज गिवन टू नेक्स्ट कंडेंसर, so plus Q charge on the first plate of second condenser, due to induction minus Q charge will induce on inner side of the second condenser on second plate, okay, and plus Q charge induce on outer plate which is free। now this plus Q charge then moves towards the third condenser। okay, so this is plus Q charge, so by induction minus Q charge induce on inner side of the second plate of third capacitor and plus Q charge induce on outer side। now as we know that this plus Q charge is free, so it moves towards negative terminal and in this way that plus Q charge removed to the earthing मतलब यहाँ पर negative plate। so in this way charge plus Q passes through each condenser and then to the negative terminal। so this is the flow of charge through this combination। okay, now यहाँ पर देखिए the charge passing through each condenser is same, that is Q। okay, इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, C1, C2, C3 और पोटेंशियल भी डिफरेंस है। now यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, all condensers carry same charge, okay, and potential difference across each condenser कैसा है यहाँ पर डिफरेंट है। so such combination is known as series combination। okay, अब series combination मतलब capacitors or condensers are said to be in series combination when all condensers carry same charge। okay,
but potential difference across each condenser is different. This is the main characteristics of condensers in series. अब यहाँ पर total applied potential कितना है V, and that potential get distributed across each condenser according to their capacities. Basic formula हमें पता है, देखिए C is equal to Q by V, ये फॉर्मूला होता है. ओके, अब चार्ज तो सेम है यहाँ पर. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है. सो C एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस कंडेंसर के अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल होगा उसकी कैपेसिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी. अगर यहाँ पर पोटेंशियल कम है, इसका मतलब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है, बिकॉज कैपेसिटी एंड पोटेंशियल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, तो जैसी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होकर उसके अक्रॉस अप्लाई हो जाता है. तो अगर टोटल पोटेंशियल भी है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो सबकी एडिशन कितनी होगी, जितनी टोटल पोटेंशियल अप्लाइड होगी. सो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2 plus V3. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मतलब यहाँ पर हर एक कैपेसिटर से अप्लाई होने वाला चार्ज कैसा है, ऑल कंडेंसर्स कैरी सेम चार्ज, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. तो इनकी एडिशन टू अप्लाइड पोटेंशियल इतनी रहती है. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1. नो, अब देखिए C1, C2, C3 are the capacities of each condenser. Now they are connected in series, तो इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, टोटल कैपेसिटेंस, लेट इट इज CS. ओके, तो जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन CS is equal to चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज Q एंड टोटल पोटेंशियल अप्लाइड कितना है यहाँ पर V. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर होल कॉम्बिनेशन. यहाँ पर देखिए V के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V is equal to Q upon CS. CS का मतलब इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस यूज करते हैं. तो V1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फ्रॉम दिस Q डिवाइडेड बाय C1. V2 is equal to Q divided by C2. Okay, because charge same है. Now V3 is equal to Q divided by C3. अब V1, V2, V3 ये वैल्यूज यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखनी है. देखिए V की वैल्यू कितनी है, Q by CS, Q by CS, V1 Q by C1 plus V2 Q by C2 plus V3 Q by C3. अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, Q कॉमन निकलेगा. ठीक है, और इस Q के साथ वो कैंसिल हो जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, फिर 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. So this is the formula for CS. Okay, मतलब यहाँ पर reciprocal of equivalent capacitance in series combination is equal to the sum of reciprocals of individual capacitances. ठीक है, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर लेते तो फिर क्या होगा, ये इक्वेशन आ जाता है, CS is equal to C1 C2 C3 divided by C1 C2 plus C2 C3 plus C3 C1 etc. So ये एक जनरल फॉर्मूला for 3 condensers connected in series. Okay students, now if n condensers are connected in series, okay, instead of 3, if n number of condensers having different capacities C1, C2, C3 up to Cn are connected in series, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फिर 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 up to dash dash plus 1/Cn. तो ये जनरल फॉर्मूला होगा. ठीक है, now if n identical capacitors are connected in series, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का मतलब क्या होता है कि हर एक की कैपेसिटी सेम है. तो इसलिए 1/CS is equal to 1/C plus 1/C plus dash 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 up to 1/C. That means n times 1/C. So n times 1/C मतलब 1/CS is equal to n/C. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फिर CS is equal to C upon n. Okay.
Cs is equal to C upon N. This is equation number 3. Now this is we call it as equation number 2. Okay. Now इसका मतलब क्या होता है देखिए कि Cs is equal to C upon N. C मतलब कैपेसिटी ऑफ सिंगल कंडेंसर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. मतलब Cs की वैल्यू C से कम हो जाएगी. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ओके उसकी वैल्यू कम हो जाती है. जैसे इफेक्टिव कैपेसिटी इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटीज. ओके तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर इज यूज्ड टू रिड्यूस कैपेसिटी इन द सर्किट. तो और एक पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करते हैं, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जनरल, E is equal to half CV square. वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है. ES, S stand for series combination, is equal to half CS. CS का मतलब equivalent capacitance in series combination into V square applied potential. half, अब CS की वैल्यू कितनी है, C upon N, C upon N into V square. Suppose this is equation number 4. Okay. Now this is all about condensers connected in series. Now condensers in parallel. Okay, सेम आर्टिकल है लेकिन कंडेंसर्स हमें पैरेलल कनेक्ट करना है. अब पैरेलल कनेक्ट करना है मतलब क्या होता है, देखिए एज शोन इन फिगर. लेट देयर आर 3 condensers having capacity C1, C2, C3. Okay, now see, first plate of first condenser, first plate of second condenser and first plate of third condensers are all connected together at common point. Okay, and then it is connected to let positive terminal of the battery. Now second plate of each condenser connected to the common point and is connected to negative terminal of the battery. मतलब यहाँ पर condensers are not connected one after another. Okay, so this is known as parallel combination. अब इसमें क्या होता है, अप्लाइड पोटेंशियल देखिए, अप्लाइड पोटेंशियल V. तो अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर ये दो कॉमन पॉइंट्स है यहाँ पर, सपोज A एंड B. ओके, तो अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस C1 इज V, अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस C2 इज आल्सो V एंड अक्रॉस C3 इज आल्सो V. मतलब तीनों कंडेंसर्स के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड सेम है यहाँ पर. ओके, नाउ लेट प्लस Q चार्ज withdraw from the battery. अब यहाँ तक कितना चार्ज आता है, प्लस Q. Okay, now there are 3 ways. So this charge get split up और यहाँ पर डिवाइड हो जाता है. Let the charge passing through first capacitor is Q1. Okay, the charge passing through second capacitor is Q2 and the charge passing through third capacitor is Q3. तो देखिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज होगा ऑफ कोर्स. ओके, सो यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है. ड्यू टू इंडक्शन माइनस Q1 चार्ज इनर साइड ऑफ सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कंडेंसर इंड्यूस हो जाएगा, प्लस Q चार्ज बाहर इंड्यूस होगा. ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर माइनस प्लस Q2 चार्ज इनर सरफेस पर माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बाहर यहाँ पर आउटर सरफेस पर Q2 चार्ज. सिमिलरली प्लस Q3 इनर साइड पर माइनस Q3 ओके आउटर सरफेस पर प्लस Q3. अब प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज यहाँ पर फिर से समेशन हो जाएगी, दैट इज प्लस Q. तो ये टोटल चार्ज अगेन रिटर्न टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, तो इस तरह से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे बिटवीन द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर्स. सो देखिए फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, प्लस Q1, यहाँ पर प्लस Q2, यहाँ पर प्लस Q3. मतलब ईच कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट चार्जेस, लेकिन हर एक के ऊपर पोटेंशियल सेम अप्लाइड होता है जितना ये टोटल पोटेंशियल होता है. ओके, तो यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ऑल कंडेंसर्स कैरी डिफरेंट चार्जेस बट potential difference across all is same. Such combination is known as parallel combinations. Okay, for example 3 condensers are connected in parallel combination. मतलब
condensers are said to be connected in parallel if the charges flowing through each capacitor is different but potential difference across each capacitor is same. Okay, तो यहाँ पर तीन कंडेंसर्स हम कंसिडर कर सकते हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी होगी C1, C2 एंड C3. अब यहाँ पर चार्ज ए पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू Q1, Q2, Q3. ओके, जैसे जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, let this is equation number 1. Now, three capacitors are connected in parallel having capacities C1, C2, C3. अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी सपोज Cp होगी. P stand for parallel combination. Okay, तो चार्ज कितना है टोटल Q, टोटल पोटेंशियल V, तो ये Cp के लिए फॉर्मूला होगा. Therefore, Q is equal to Cp into V. Okay, this is for the total combination, parallel combination. अब यही फॉर्मूला हम इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. देखिए Qn के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q1 is equal to C1 into V, है ना. चार्ज अलग है, कैपेसिटी भी अलग है, लेकिन अप्लाइड पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस सेम होगा. Now Q2 is equal to C2 into V, Q3 is equal to C3 into V. यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. अब ये Q1, Q2, Q3, ओके, और Q इनकी वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखते हैं. तो क्या होगा देखिए, Q के जगह पर Cp into V प्लस Q1 C1 into V प्लस Q2 C2 into V प्लस C3 into V. ओके, अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा V, और ये कॉमन निकला हुआ है V इस V के साथ कैंसिल हो जाता है. Therefore Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिलता है. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या आता है, C1 plus C2 plus C3. So equivalent capacity in parallel combination is just the addition of individual capacitances. Suppose 2 microfarad, 3 microfarad और 5 microfarad. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड. जस्ट एडिशन करनी है यहाँ पर. इसका मतलब Cp की वैल्यू C1, C2, C3 से ज्यादा होगी, उनकी एडिशन होती हो, इसलिए. ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. सपोज n condensers are connected in parallel. Suppose there are n number of capacitors having capacities C1, C2, C3 up to Cn. तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, Cp is equal to C1 plus C2 plus up to Cn, right? So this is general formula. Now, if n identical capacitors are connected in parallel combination, okay, so Cp is equal to C plus dash dash up to C. So this is n times C. Okay, so this is equation number 3. Cp is equal to Nc. यहाँ पर भी हमें मालूम होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, इफेक्टिव कैपेसिटी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम इंडिविजुअल कैपेसिटी. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी इन सर्किट. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, टू रिड्यूस द कैपेसिटी इन द सर्किट. नो, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही जनरल फॉर्मूला E is equal to half Cp square. तो EP, P stand for parallel, EP is equal to half Cp into V square. ओके, अब Cp की वैल्यू कितनी है Nc, so half Nc V square. Let this is equation number 4. No, okay, this is formula for energy stored in parallel. अब देखिए, n identical condensers when connected in series combination, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है. सपोज इक्वेशन नंबर 3, Cs is equal to C by n, and if n identical capacitors are connected in parallel, तो उसके लिए Cp is equal to Nc, ये फॉर्मूला है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 डैश. अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, ओके, तो Cp डिवाइडेड बाय Cs इज इक्वल, अब Cp की वैल्यू Nc डिवाइडेड बाय Cs की वैल्यू कितनी है, C by n,
C by n। तो यहाँ पर C कैंसिल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सपोज पहले उसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे हम, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद वही उतने n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी। अगर दोनों का रेशियो लेते हैं हम Cp/Cs, तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है एंड इट इज इक्वल टू n स्क्वायर। कितना? n स्क्वायर। अब अगर उनका रेशियो लेते हैं हम तो दैट विल बी 10 स्क्वायर, दैट इज 100। तो दोनों का रेशियो 100 आ जाएगा। फिर समझ लीजिए कि हमारे पास 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। पहले हमने उसको पैरेलल कनेक्ट किया, बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अब दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा Cp एंड Cs, उसका रेशियो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं हमारे पास? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो उसका आंसर होगा 25। तो जस्ट यूज दिस शॉर्ट फॉर्मूला। देखिए, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास है 11, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेशियो अगर पूछते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? 11 स्क्वायर, मतलब 121। ओके। नाउ अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए एनर्जी स्टोर कितने होते हैं? हाफ C/n into v स्क्वायर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ n c into v स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 डैश। अब इसका भी रेशियो लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो EP डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल, अब यहाँ पर EP की वैल्यू देखिए, हाफ n c v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ES का फॉर्मूला हाफ C/n into v स्क्वायर। यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल, C कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, तो n और यहाँ पर 1/n उसका रेसिप्रोकल, तो ये n स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर EP डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल टू n स्क्वायर। वही फॉर्मूला, वही शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल कंडेंसर हम कनेक्ट करते हैं एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल, वही n आइडेंटिकल कंडेंसर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका रेशियो क्या होगा? पैरेलल टू सीरीज n स्क्वायर ना। अगर 10 कैपेसिटर्स हैं तो उनके एनर्जी स्टोर का रेशियो कितना होगा? 100 होगा। ओके, दैट मींस EP इज इक्वल टू n स्क्वायर ES, ये फॉर्मूला होगा। ओके, वैसे यहां पर फॉर्मूला क्या हो सकता है? फिर Cp इज इक्वल टू n स्क्वायर CS। तो ये शॉर्ट फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। सपोज n आइडेंटिकल, सपोज 10 नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उसकी वैल्यू दी है एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ condensers in series and condensers in parallel, sometimes in board question, okay, board exam में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। differentiate between condensers in series and condensers in parallel, तो यहाँ पर differentiate points कौन कौन से हो सकते हैं, ये यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए, पहला पॉइंट कौन सा होगा? डेफिनेशन। Okay, when condensers are connected in series, the charges passing through each condensers कैसे रहते हैं? Same रहते हैं। When condensers are connected in parallel, charges passing through each capacitors कैसे होते हैं? Different होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? When condensers are connected in series, the potential applied across each condenser is different. लेकिन अगर हम कंडेंसर्स पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ईच कंडेंसर्स इज सेम, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, राइट। देन अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ओके, तो वही फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा?
equivalent capacitance in parallel combination is equal to just addition of individual capacities. Okay. Next, effective capacity is smaller than the smallest of the individual capacities in series combination. वही parallel combination में equivalent capacitance कैसे रहता है? Effective capacity is greater than maximum individual capacities. Okay, तो यहाँ पर equivalent capacitance वैल्यू कम होती है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, उसके लिए एडिशन होगी, मतलब ज्यादा होती है. इसलिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, condensers are connected in series. This series combination is used to reduce the value of capacity in circuit, whereas parallel combination is used to increase the capacity in the circuit. Okay. Then the equivalent capacity is less than individual capacities. यहाँ पर equivalent capacity is greater than individual capacities. Okay. मतलब capacity in parallel combination is greater than capacity in series combination. वैसे energy stored in series combination कम होती है and energy stored in parallel combination ज्यादा होती है. ओके, ये भी डिफरेंशिएट पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पर रिलेशन देखिए, EP is equal to N square into ES, मतलब एनर्जी stored in parallel combination of condenser ज्यादा होती है, is greater, okay, than the energy stored in series combination. ठीक है स्टूडेंट्स.